I'm your host Salim bin Mohammed Rafi, and this is my YouTube channel Zamir Universal. Today I'm going to tell you one man against the whole world, and that is a crazy, mentally retarded, suffering from schizophrenia, a meganomania, a paranoid person, a criminal with cases in the court, challenging and pointing judges in the Supreme Court of his own choice, forcing the Orthodox Jews who never ever are supposed to fight with people and stop them for studying Torah and recruiting them by force into the army. And you can see one by one then what he has done, how he has insulted in his war council. First he was at daggers down with the secretary and the Minister of Defense. Then he was at daggers down with the Security Minister. Then he was daggers down. He said he will not let him sit the intelligence chief, where he is now holding his war council meeting. So, why on earth is the Chief Justice of Supreme Court of the Israel is watching this man now, when the International Court of Justice is going to issue arrest warrant for his arrest? And there are many countries like Ireland, Spain, or even in India, he will be arrested and he will be put behind the bars till he dies. And he will face the same as the Serbian president faced. He will ask for his life, or he will even wish to die, but he won't be able to die an easy death, because the blood of hundreds and thousands of Palestinian innocent children and look at the mass graves which are being from each hospital the IDF have got. It is his orders. You can even see the drawn faces, the pale faces of the IDF youngsters, that they are obeying this mentally retarded man, just like the Nazis obeyed Hitler. And why can't they get rid of this gentleman? And if not by political means, as the other people are, very lukewarm, asking him for elections, why does the public does not go to his house and force him to quit? Why don't they have a sit down protest and ask him to quit? He is such a stubborn, he's like a stubborn mood. He will destroy Israel and then alone, because his salvation himself is, he suffers from hallucinations that he is a Messiah. He is the one who is supposed to bring the Messiah from God by just putting the ashes in a piece of land and building a temple. He is crazy that he in this 20th century is going to be able to do that. You can see one by one the whole world is turned against, and now the hatred against the Jews. And I pity those Jews who are good Jews, who are practicing Jews, who practice Torah, and who are really Jews. Zionists are not Jews. You can hear from your own rabbi who's telling you that they are the craziest people, and he is the head of craziest people himself, is called Netanyahu. With this introduction, I'm just going to play to you that how the chief of intelligence in Britain, he says in one of the interviews that he made a strategic mistake, and I'm going to show you how one by one the chief of army staff, the chief of the intelligence in Israel are resigning. And I think they are resigning, because that will save them. That will save them for their arrest in different parts of the countries, because they will be also the arrest warrants for them for the murder of these hundreds and thousands of innocent children and women of Gaza. And they also now do all the crimes committed, all the war crimes committed, or the genocide committed by this. He has actually put the whole nation of Israel in jeopardy. And he has hijacked every Israeli living there, good or bad, Arabs, non-Arabs, practicing, non-practicing. And so, but small minority of these extremist Zionists who are not Jews, who are just mentally crazy, mentally deranged people, why not to get it? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनके इंटेलिजेंस चीफ इस बात पर इस्तीफे दे दें कि उन्होंने इजराइल की हिफाजत नहीं की। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इजराइल की मिलिट्री का इंटेलिजेंस चीफ है,
और ये इतना काबिल शख्स है कि इसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इस शख्स ने इस्तीफा दे दिया और ये मामला इतना भयानक सामने आया है कि इस शख्स ने जब इस्तीफा दिया है तो इसराइल में खलबली मची है। उसके बाद ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहूदा फोचिस, ये शख्स इजराइल की फौज का टॉप वेस्ट बैंक का जर्नैल है और ये इतना तगड़ा जर्नैल है, इतना तगड़ा जर्नैल है कि इसराइल की फौज में इसको कहा जाता है कि ये हमारा सबसे करीम जिसे कहते हैं वो जर्नैलों में से एक है। और ये जनाब इस वक्त जो करंटली कमांड, द सेंट्रल कमांड जो होती है, उसको होल्ड करता है। इसने फौज के आर्मी चीफ को कहा है कि मैं रिटायर होने जा रहा हूं, मैं मजीद काम नहीं कर सकता। इसके अलावा इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे सारे रिजाइन कर रहे हैं और गालिबन अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये भी पैदा हो सकते हैं कि उनका आर्मी चीफ भी जा सकता है और मजीद लोग। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, हुआ क्या है इसराइल में कि सारे इस ओहदों से जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है जो कि शायद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, जो कुछ अगले चंद महीनों में, हफ्तों में होने वाला है वो बड़ा भयानक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने एक तो ऐलान कर दिया है कि हमें सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस चाहिए, हम एटमी ताकत बन जाएंगे और हम न्यूक्लियर पावर बनने के करीब। इसराइल ने ये होने नहीं देना। जो उनका प्लान है होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। प्लान तो उन्होंने ये भी किया था कि पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बनेगा। आज उस वक्त उनको लगता था कि पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है। अब नेतन्याहू से पूछा तो वो उसने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, यानी वो ये समझता है कि पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उसने सिर्फ नाम लिया 3 दफा, ईरान ईरान ईरान। उसे पूछा कि 3 मुल्कों का नाम लेते जो आपके लिए खतरा। उसे कहा पहले नंबर पर भी ईरान, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। उसे कहा ईरान को अगर आप टैकल कर ले तो ये हमास, हिजबुल्ला और ये होसी, ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। तो आप अंदाजा कर ले क्या। अब मसला ये है कि सारे क्यों भाग रहे हैं। खतरा उनको 3 चीजों का है जो होने जा रही हैं। नंबर 1, उनको पता है कि ईरान एटमी ताकत या तो बन जाएगा या हम बनने से रोक देंगे। दोनों सूरतों में जंग है और बड़ी जंग होने जा रही है और टाइम अब ज्यादा नहीं है। ईरान ने अगले चंद हफ्तों के अंदर ये काम पूरा करना है और वो कह रहे होने जा रहे हैं। और वो जो जंग छिड़ेगी उसके बाद फिर आपको वो इजरायली जर्नलिस्ट की बात सामने आएगी। उसने कहा कि अगर मैं बता दूं कि मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है, 40 लाख लोग अभी मुल्क छोड़कर चले जाए, इतने हालात खराब है। यानी बात आ गई अब न्यूक्लियर मारने तक, इससे नीचे की बात हो नहीं रही। देखिए, ईरान ने कह दिया है कि आपने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की, हम आपका एटमी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। तो जब एटमी प्रोग्राम तबाह होने लगता है या कोई हमला होता है तो याद रखिएगा फिर बड़ी तबाहकुन जंग होती है। फिर आपके लोग भी मारे जाते हैं, आप हर तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों से बचने के लिए सारे जा रहे हैं क्योंकि शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। नंबर 1 ये सूरत है। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को गिराने जा रहे हैं, जिसके बाद वो खाली फिर जंग याद रखिएगा इनकी इस चीज से नहीं रहेगी कि ईरान के साथ जंग है, फिर 2 अरब मुसलमानों से जंग होगी। वो अलग बात है, हुक्मरान कुछ भी ना करे मुस्लिम कंट्रीज के, लेकिन फिर अवाम का जो समंदर आएगा वो फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, बाहर ले जाएगा। वो सारे फिर अपने ममालिक में कहेंगे कि अब जंग करनी है, अब भेजें फौजें, भेजें एयरफोर्स। इवन के ना तुर्की रोक पाएगा ना अफगानिस्तान। अफगान तालिबान के अंदर तो इतना ज्यादा इस वक्त नीची सतह पर गुस्सा पाया जा रहा है कि कब हम जाएंगे लड़ने के लिए। और वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के खिलाफ लड़ा है, इसराइली भी आगे लड़े थे तो हमें लड़ने के लिए जाना है, तो वो तैयार हो जाएंगे। तीसरी वजह ये है कि इन तमाम जो लोगों को ये लग रहा है कि हमें खतरा ये है कि इजराइल पर एटमी हमला हो सकता है, ये उनको सबसे बड़ा खतरा है। और उसकी मेन वजह ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि इसराइल को बहुत बड़ी गलती कर देगा, जिसके बाद सारे ममालिक चाट दौड़ेंगे। क्योंकि गालिबन अगर उनको इस सारे सिनेरियो में लग रहा है कि ईरान को हम ना रोक पाए तो फिर उसके बाद इसराइल को बड़ा काम करेगा, जिसके बाद वो हम पर एटमी हमला भी कर सकता है या हमारा बुरी तरह सफाई से मिटाने का प्रोग्राम कर सकता है। और ये सारी सूरत हाल में सारे हम पर जंग छेड़ सकते हैं, हमें शायद फिर छुपने की जगह ना मिलेगी। देखिए, इस सारे सिनेरियो में इजराइल की फौज में बड़ी बददिली पाई जा रही है। वो ये समझ रहे हैं कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं
यानी आप ये देखें ना कि फौज के लोग लड़ने को तैयार हैं। इनकी एक ही कैपेबिलिटी है इसराइल की इस वक्त सबसे ज्यादा, जो कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमेशा से वो ये कहते थे हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। उससे बढ़कर कैपेबिलिटी अब नजर आई है कि दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर लोगों को ये काबू करते हैं, उनकी वीडियोस बनाकर। उनके पता नहीं डाटा इनके पास है, उनके राज हैं, चीजें हैं। और हम सब ने देखा कि छोड़े बाकी चीजों को, उम्मत मुस्लिमा का कितने कितने बड़े लीडर इनके काबू में हैं। अब सिनेरियो अभी ये बन रहा है कि हर तरफ इजराइल में जंग नजर आ रही है और इनको ये लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। देखिए, इजराइल ने मुसलमानों की नफ्स चेक कर ली है, ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने चेक कर ली है 45,000 बंदा मार के। उनको लगा यार ये टस से मस नहीं हुए। एक इजरायली ने कहा कि हमें खतरा ये था कि जब हमने जब प्लान किया था कि हमें इतने बंदे मार देंगे, जंग छेड़ देंगे, तो हमें खतरा ये था कि शायद हम आज़ाद नहीं फिर सकेंगे। उन कंट्रीज में भी जो मुस्लिम नहीं है, यानी अमेरिका से लेकर तमाम, ये सब हम पर चढ़ दौड़ेंगे। तो हमने देखा कि मुसलमान तो सो रहा है, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। सो लिहाजा हम समझ गए हैं कि मामला काफ़ी हद तक खराब है, लिहाजा उन्होंने नफ्स चेक कर ली थी। अब असल में वो कुछ करने जा रहे हैं बड़ा, और गालिबन सबसे बड़ा जो प्लान नज़र ये आ रहा है वो है खित्ते में ईरान के खिलाफ एक बड़ा हमला, जिसमें एटमी हमला भी शामिल हो सकता है। तो इस सारे मामले पर इजराइल की फौज के जो जर्नैल, देखिए आपको ये कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि जी इंटेलिजेंस का चीफ जो है वो इसलिए रिजाइन करके गया है कि वो 7 अक्टूबर का हमला नहीं रोक पाया। अभी 7 अक्टूबर को हुए 200 दिन हो गए हैं, तो मैं भी याद आ रहा है। इसी तरह अब और जो जर्नैल उठकर वो कह रहे हैं, एक ने कहा अगस्त में हम जा रहे हैं, 2 कह रहे हैं हम ये जा रहे हैं, और आर्मी चीफ पर भी प्रेशर है। मसला ये है कि ये वही सिनेरियो बन रहा है जो भारत में बना था कि जब मोदी को कहा गया था कि भाई आप अभी ना करें पाकिस्तान पर हमला, तो उसे कहा नहीं करना। एयरफोर्स ने कहा था ये फिजिबिलिटी ठीक नहीं है। जो जर्नैल है वो कह रहे हैं नेतन्याहू को और बाकी सबको कि इस वक्त ये जंग छेड़ना मुनासिब नहीं है। उसको तकलीफ ये है कि नहीं जी नहीं, ये वक्त गुजर रहा है और यही है हमारे उरूज का टाइम, यही है सब कुछ, और हमें ये काम करना पड़ेगा। लिहाजा वो कह रहा है कि भाई मैं तो तैयार हूँ, हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हूँ, मार कुटाई के लिए तैयार हूँ। और उसने इस सारे मामले पर देख लिया है कि दुनिया की तमाम ताकतें इस वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं हमारे साथ, तो हमें यही काम है, लड़ाई करना। ये सारे खौफ में है कि किसी तरह, देखिए एक सारा जो सिनेरियो सामने आया है, ये जो ईरान का भी हाइपरसोनिक मिसाइल मारा गया था, अब उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उनमें एक ये चीज़ भी सामने आ रही है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के नतीजे में जो उनकी एयर बेस को मारा गया था, इनके बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से फौजी, अब इसकी तस्दीक तो ना तो इसराइल कर रहा है ना कोई आज़ाद जराए कर रहे हैं, लेकिन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से बातें सामने आ रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल उनकी बेस पर लगा, वहाँ पर इनके स्टेशन पर बहुत ज़्यादा अहम तरीन ऑफिसर थे, यूनिट थी इनकी पूरी, वो उड़ा दी गई है। अब ये मारे गए हैं, कितने मारे गए, देखिए एक चीज़ तो तय है, आपकी जब एयर बेस होती है, अब जाहिर सी बात है किसी को अंदर नहीं पता था कि इसराइल के ऊपर जो हमला होगा वो उनकी इस एयर बेस पर आएगा। अब जाहिर सी बात है उसके ऊपर डिफेंस सिस्टम लगे थे, और वो भी इसराइल को प्रोटेक्शन देने के लिए 7 से 10 सिक्योरिटी लेयर्स थी, और सारी की सारी बीट होकर जब हमला इन पर करने के लिए आए हैं तो उनको ये लग रहा है कि अब अवाम को तो बाकी बातें नहीं पता, हम पर हमले हो रहे हैं। आप सोचे ज़रा, कब आपको याद है कि इजराइल के अंदर ये बात हुई थी कि अवाम कोई भी वीडियो नहीं बनाएगी, कोई पोस्ट नहीं करेगी, जहाँ पर हमला हुआ है उन साइट्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जिसने डाली हम उसको उठा लेंगे। आप बताएं, आपने इसराइल में कभी आखिरी दफ़ा ये चीज़ें सुनी थी? वहाँ तो आप खुलकर तनकीद करते हैं फौज के ऊपर, एजेंसियों पर, और उसको रिपोर्ट किया जाता है। आज भी ये जब जा रहे हैं जर्नैल, और ये अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आर्मी चीफ भी जा सकता है, और वो सारे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ इतनी खतरनाक होने वाली है जो हमें यह लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन असल में हो ये रहा है कि नेतन्याहू इस वक्त स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं चल रहा, ये बड़ी अहम बात है। वो चल रहा है पेशन गोइयों के ऊपर, कि उसको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वरना आप ये देखें कि उनकी कैलकुलेशन क्या थी, उन्होंने शायद इस सारे सिनेरियो में ये देख लिया था कि अगर हम मुसलमानों को अमेरिका के ज़रिए मैनेज कर ले, तो वो बस मजम्मत करते रहे, कुछ एहतजाज वगैरह कर ले, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। लिहाजा वो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
अब इस हमले के नतीजे में देखिए ईरान इस वक्त पूरी तरह तैयार है उन पर स्ट्राइक बैक करने के लिए। रूस पूरी तरह तैयार है स्ट्राइक बैक करने के लिए। अब सबसे बढ़कर जो मसला हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, आप ये देखें कि यानी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो मुसलमानों की मुक़द्दस मकामात अक्सा और ये तमाम जगहों पर बकरियां लेकर आ रहे हैं। और एक बंदा ऐसा पकड़ा गया था जो बकरी लेकर आ रहा था। अब आप सोचें ज़रा कि वो ख़ास तौर पर किस मकसद के ला रहा था, ये क्या करते हैं, जादू टोने करते हैं, ये क्या मामलात करते हैं, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही। लेकिन वहाँ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो ख़तरनाक चीज़ है वो ईरान का मामला असल में पूरे खत्ते के अंदर एक जंग किसी सूरत हाल पैदा होने वाली है। देखिए ईरान के आज आए हुए थे सदर पाकिस्तान, और स्टिल है। और असल में उन्होंने वहाँ पर आकर जो स्नैरियो पाकिस्तान के साथ रखा है, गालिबन अमेरिका ने हमें गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट तो किसी सूरत नहीं चलाने देना। और ये भी सूरत हाल हो सकती है कि ईरान के हमने तरले किए हैं कि भाई आप कुछ कर ले, कुछ रियायत कर ले, भाई है आपके, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में ना जाएं और हमारे लिए कुछ फेवर कर दे, फलाना कर दे। बदले में जाहिर सी बात है पाकिस्तान ये छोटी देता है कि अमेरिका कल को अगर हम पर पाबंदी आयद करने की कोशिश करता है, यदि अड्डे आप दें हमें ईरान के खिलाफ, तो हम नहीं देंगे, तो हम कम से कम आपकी फेवर कर सकते हैं। तो इस सारे मामले पर पाकिस्तान जाहिर सी बात है लेवरेज देगा, और हम इस वक्त जंग में पड़ना भी नहीं चाहते। तो ये जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, ईरान का मामला ये है कि उसके ऊपर हमला पूरी तरह तैयार है। इसराइल ने कभी बर्दाश्त नहीं करना कि ईरान ये बन जाए एटमी ताकत, और वो भी एक हफ्ते के नोटिस की बात की है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि चाइना भी चाह रहा है कि ईरान ताकत बने, रूस भी चाह रहा है ईरान ताकत बने। और यहाँ खित्ते में हम बहुत बड़ी जंग देख रहे हैं जिसको ये जर्नैल नहीं हैंडल कर सकते। जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लग रहा है हमारी बैकिंग नहीं हो पा रही, हमारा सिनेरियो खतरनाक है, या हम पर जिम्मेदारी डाली जाएगी और बाद में हम इस कैबिनेट इन तमाम चीज़ों का हिस्सा नहीं बन सकते। ये इस सारे मामले पर जब बहुत सारे लोग नहीं हैंडल कर पाते तो वो ये लगता है कि बस हम रास्ते में छोड़कर चले जाए। ये ना हो कि बाद में लाखों करोड़ों लोग मर जाए, अरबों लोग मर जाए, दुनिया के अंदर जंग छिड़ जाए और ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो। देखिए जहाँ तक सिनेरियो ये बन रहा है इन जंगों का, वो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि हम बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर हैं। आप देखें कि सबसे बड़ी बात आज की है रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने, उसने कहा कि न्यूक्लियर ताकतें आखिरी हद तक डायरेक्ट हमले पर पहुंच गई हैं। अब ये बात उन्होंने किस सिनेरियो में कही थी? जाहिर सी बात है दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि रूस और उसके साथ फ्रांस ये बड़ी ताकत है, या बरतानिया, लेकिन उसके साथ दो ताकतें और भी हैं। अब अगर इसराइल अनडिक्लेयर एटमी ताकत है कि उसने ऐलान नहीं किया, तो ईरान भी अनडिक्लेयर एटमी ताकत है। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम चीज़ें, हमें सिर्फ एक हफ्ते का टाइम चाहिए, सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस चाहिए, और हम इस एक हफ्ते के नोटिस के बाद पूरी तरह जंग छेड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यानी इस लेवल पर कि हम एटमी ताकत बन जाएंगे और हम यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेंगे। तो आप बताएं कि अगर न्यूक्लियर टेस्ट ये लोग कर देंगे तो उसके बाद, उससे पहले तो इन्होंने रोकना है, दौरान भी रोकेंगे और बाद में। यानी आप सोचें कि जब एक दफ़ा अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट, आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ अमेरिका इसको बनने देगा ईरान को, या इसराइल बनने देगा? और इनके पास टाइम भी बिल्कुल थोड़ा रह गया, क्योंकि मई के अंत तक वो कह रहे हैं, या मई है या थोड़ा सा आगे जब वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा टाइमिंग है ईरान को चाहिए। अब इस सारे मामले पर ईरान ने The wider war that nobody wants. The United States has not been involved in any offensive operations. What we're focused on, what the G7 is focused on, and again it's reflected in our statement and in our conversation, is our work to de-escalate tensions. After being warned by its allies to avoid further escalation, the US says Israel carried out a strike inside Iran on Friday. Iran downplayed the impact of what appears to be a fairly limited strike after its air defenses intercepted 3 drones with no reports of a missile attack. An Iranian official told Reuters there was no plan to respond at this point. All this came less than a week after Iran launched an unprecedented attack on Israel in response to a strike on its embassy compound in Syria. Former Israeli General Tamir Haiman, who once was head of intelligence for the IDF, told me Israel had miscalculated on both Hamas and Iran.
Now, I think the IDF intelligence was wrong in the 7th of October for not detecting the Hamas intention, and it was wrong of assuming what will be the Iranian response. Those are two mistakes, no doubt about it. With Israel and Iran's decades-long shadow war now playing out in the open, the rules of the game in the Middle East are being rewritten. I spoke with Britain's former top spy about the situation just before Friday's strike. So, John Sawyers, welcome back to our program. Thank you very much, Christian. So, what do you think at the end of this very, very tense week, Josep Borrell, as all the leaders are meeting, to try to figure out in Europe and what's happening, has said that we are on the edge of a cliff. Do you agree? I think I may be slightly overstating it. It's a very tense time at the moment after the Israeli strike in Damascus and the very heavy Iranian response. We need to bear in mind that Iranian response was a failure. They will be disappointed in Tehran that a tiny fraction only of their barrage of missiles and drones, only a very few got through and didn't really cause any damage at all to Israel. And I think Prime Minister Netanyahu is feeling pretty comfortable at the moment. Just 2 or 3 weeks ago, we were all talking about the disasters in Gaza, the failure of the relative failure of the Israeli offensive there, and the bombing of the humanitarian convoy. He's changed the subject. So, what do you think is a manageable next step, if there is such a thing? First of all, we need to recognize that this shadow war between Israel and Iran has been going on for a good number of years now. The latest round of this was the Israeli strike in Damascus, which took a lot of people by surprise, including the United States administration, I think. It shocked the Iranians as well, because it was a sort of escalation to attack a designated diplomatic building, even though it was being used as a headquarters for the Revolutionary Guards. I think Israel made a strategic misjudgment. They thought they could live alongside a Hamas-controlled Gaza. 7 October demonstrated they could not. Well, they're living alongside a Hezbollah-controlled Lebanon. They're living alongside not an Iranian-controlled Syria, but a Syria in which Iran has a substantial foothold. Now, I don't think the Israeli security chiefs, the people I used to work with in Mossad and Shin Bet and so on, will be ready to tolerate this indefinitely. And they'll say, if not now, then when? But I think the politics point to a gradual step forward rather than a major escalation. And I just wonder, your security interlocutors over the years, many of them have publicly said that actually Israel's most existential threat is the continued lack of a political resolution that would bring security between Israel and the Palestinians. Do you think now, as you look at this morass that they're in Gaza, that option is still on the table for Israel? Well, there has to be an option for a political solution. There was a sort of common ground between Prime Minister Netanyahu and Hamas in that neither wanted a two-state solution. They both wanted a one-state solution, but Hamas wanted a one-state solution with no Israel, and Israel wanted a one-state solution with no Palestinians. And I think either course is a recipe for really serious problems. So we've got to get back to the concept of a two-state solution. I think it is conceivable, it is possible to get there. So that has to be addressed. But Israel does have to also address its direct security demands. You say that this general is saying that you have to finish the job in Gaza. I'm not so sure about that, actually. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर